The main motive of this project was to be job providers, not job seekers. The inception of the Seed Money project was with a visit of our Honorable Deputy CM Sir and Education Minister. He asked students about their ideas regarding if they are provided with the seed money, what will they do? And it was very nice that the students shared some very exciting and novel ideas, which can be potentially developed into very successful and sustainable business models. शीज़ा will do the handicraft work, I'll do the chocolate work. हम दोनों ने ये decide किया we'll go in our own way, but we'll stay united. I had some ideas in my mind, but I wanted to know that what is the demand of market. So I searched on internet. I found the trendy designs which are really popular nowadays. So keeping those in mind, I modified my designs. At first I thought I will be like the Dairy Milk owner. I went to 5 to 4 bakeries. I got ideas from them that I should get dark chocolate because market में mostly dark chocolate बहुत महंगी मिलती है. Also calories and fat. The main thing which I learned from this is we have to be very consistent. Like when we start a small business, the pitch we are starting, it should be very fluent. The biggest learning was that business is not as easy as it seems. At first when we learned that we are going to do some business, we were like, it's easy peasy, we'll do this, we learned this much, but it was really hard. Market is like a sea. There are many different kind of fishes, and if you are there, so you need to deal with everyone. Now we are thinking that after this we'll expand the business. If more people will get involved, it would increase our production in less time. I would like to go from street to street and work with women and teach them how to make chocolates if they are interested. क्या बात है, जोश और उत्साह से भरे और आत्मविश्वास से भरे ये हमारे नन्हे यंग एंटरप्रेन्योर्स. तो एक बारी फिर से जोरदार तालियों के साथ में हम इनका हौसला बढ़ाते हैं. नो ब्रिलियंट वर्क. बहुत अच्छा लगा आपका काम देख के. थैंक यू सर. आपने एक छोटी सी बात कही कि पहले लगता था बिजनेस इजी है, फिर जब करने लगे तो समझ में आया कि उतना आसान भी नहीं है. मतलब क्या मुश्किल लगा बिजनेस में? Sir, starting में we thought that it's easy, we'll start do this and it will work, but it was not that easy. Like market surveys, it was hard, like going to market. Also delivery, we are 2 girls, so we were delivery girls also. So going for deliveries, going to market, survey to survey, and working with different kind of people. So it was a bit hard. So we really got kind of experience that business is not as easy as it seems. तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे कीड़ा होना बहुत ज़रूरी है. Yes, sir. वो सबके जब तक कीड़ा नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता. तो ये कीड़ा पहले से था कि और आपको ऐसे मौका मिला और आपने कहा कि चलो अब मौका मिला है, अब मुझे इस कीड़े को नर्चर करना है. पहले कभी ऐसा हुआ? पहले से था, बचपन से. मेरा जो पुराना स्कूल था वहाँ पर एक आर्ट टीचर थी मेरी, जो अपने फ्री टाइम में ऐसे ही सामान बनाती रहती थी अपने घर के लिए. तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था, ये कितना सुंदर बनाती हैं, अपनी फ़ोटोज़ खींचती हैं, अपने घर को इन्होंने इतना अच्छे से डेकोरेट कर रखा है. मैं वो सब देखती थी और फिर मैंने उनसे सीखा. तो जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने सोचा चलो कीड़े को बाहर लाया जाए. Exactly, thank you. आप लोगों ने अभी अपने अपने आई थिंक आपका स्किल चॉकलेट मेकिंग है, आपका स्किल लॉट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड होम डेकोर थिंग्स. अगर आप अपने 2 जन के इस अलग अलग स्किल सेट को मिल करके यू कैन क्रिएट समथिंग दिस वैल्यूएबल. इमेजिन अगर आपकी कम्युनिटी में 10 और लोग मिल जाएं, आपके स्कूल में 5 और लोग मिल जाएं. इमेजिन हाउ पावरफुल कैन दैट बी. क्या आपने ये कभी सोचा है? Sir, exactly. The motive of our project is to be job providers, not seekers. So
अब जैसे कि हम लोग फोकस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, कॉलेज से लोग निकल रहे हैं, उनके पास डिग्री है, वो जॉब उन्हें मिल सकती है और वो पढ़े लिखे हैं, वो खुद प्रोवाइड कर सकते हैं। बट हमने जो टारगेट करा है वो हाउस वाइफ को करा है। वो पढ़ी लिखी नहीं है पर उन्हें जॉब चाहिए, तो हम अपनी टीम में उनको इन्वॉल्व करने का हम लोगों ने डिसाइड करा एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस That is amazing. That is सर amazing. आइडियाज़ तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट वी थिंक दैट हाउस वाइफ्स दे आर अ बिग पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, दे रियली वांट टू डू जॉब्स। वो करना चाहती हैं बट टाइम भी है उनके पास, लेकिन सर कुछ बाउंडेशंस होती हैं, कुछ उनके सर्कमस्टांसेस होते हैं जिस वजह से वो काम नहीं कर पाती हैं। सो सर आवर मेन टारगेट इज़ कि हम उन्हें जॉब प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो सर सोसाइटी में या फिर अपने स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जिनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे, बट वी थिंक कि हाउस वाइफ्स के पास भी बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे। Okay, got it. I think that will be a big empowerment for everybody. Good luck. थैंक यू सर। अच्छा, ये आपने बताया कि आपने मार्केट सर्वे किया पहले, तो किस तरह का मार्केट सर्वे किया, क्या आपको जानने के मिला? Sir, I went to Sarojini Nagar, which is a huge market with my father. Our parents were really supportive, like it is really far. So we are little dependent on them, but they are very supportive. So when I went to the market, I saw the material. There was different kind of material. But the thing is, there are already so much people in handicraft will see in market. So I thought I should have something new, unique. I found a material called macram. Its fabric is really nice and soft, and it is available in aesthetic colors, which we like very much in our offices, in our house, to decorate our homes. So something unique with new designs was our thing to do. Sir, I went to bakeries. I went to different kind of bakeries. I talked with them, like what kind of chocolates I should use, about their recipes. Obviously, they were not ready to share their recipes. So at last, I found, like after this survey, I found that I need to. Yes, sir, sure. Please keep talking. Sorry, I didn't mean to interrupt. So sir, at last, फिर मैंने खुद की रेसिपी बनाई. So that was our market surveys, like Very from nice. going to bakery, knowing how they sell their product, how they are making their product. So it was my kind of market survey. Great, great. And it's not only your interview, you can also ask them, how did they actually, what they learned from you? Sir, you saw that material. Now imagine it on your walls, like your home walls. It will look really amazing. She's a good salesman. बेस डाला। I have a simple question. When I started Chayos, I learned a lot about myself, my skills that I did not know exist. आप लोगों के साथ ऐसा कुछ सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के बारे में कुछ नया पता चला हो, कोई स्किल सेट जो लगता था पहले इम्पॉसिबल है शायद आज वो पॉसिबल लगता हो, कोई डर जो पहले था जो शायद अब निकल गया हो, समथिंग लाइक दैट? Yes, sir. Some at first I thought I won't be able to deal with different kind of customers. So starting में सबसे बड़ा डर यही था कि I won't stay calm, so I won't be able to deal with different kind of people. But sir, with our like business coach, so they told us how to deal with different kind of customers. So it was one of the biggest learning I learned about myself, that I can stay calm also, I can have patience with customers also. So you are saying कि एक एंटरप्रेन्योर को काम होना चाहिए? Yes, sir. It's must. Like you should know, you should stay patient and you should have calmness with it. एंड सर एक डर सबके मन में रहता है, लाइक ये काम हम अपनी हॉबीज़ के तरीके से करते थे, तो अब आप हॉबीज़ को इतना टाइम दोगे तो पढ़ाई के लिए टाइम कब मिलेगा। बट जब ये प्रोजेक्ट आया तो हमारे पास एकेडमिक से हट के कुछ करने के लिए था, और जिसमें हम अपना टाइम, अपना फोकस देकर हमें कुछ इनपुट और एक्सपर्ट हमारे पास बहुत कुछ था। इट इम्प्रूव्ड अवर स्किल्स। तो एक जो डर था कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे अपनी हॉबीज़ को आगे ले जाते हुए, वो निकल गया। So ये यस सर, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के तहत आपने ये किया, इसमें आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज डेवलप हो रही हैं जो आपको पढ़ाई में मदद कर रही है? यस सर। Like? सर लाइक कॉन्फिडेंस, इंटरैक्शन, लाइक आप जब कॉलेज में जाएंगे आप लोगों से मिलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कहीं पे भी स्टैंड करने के लिए, स्किल्स होनी चाहिए बातें करने के लिए। मेरा sir- सवाल एक मिनट क्लियर कर देता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स और वो खुद भी या उनके दोस्त लोग उनको कहेंगे कि क्यों, इफ आई बोरो योर वर्ड्स, क्यों अपनी हॉबीज को प्रोजेक्ट में, अपनी हॉबीज वाले प्रोजेक्ट में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो?
पढ़ाई करो, पढ़ाई में पीछे रह जाओगी, ये सब उसको सुनने को मिलेगा। अभी जो हम आज से ये 3.5 लाख बच्चों के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पूरा प्रोग्राम चलेगा आप लोगों के साथ जो किया, तो 3.5 लाख बच्चों में ऐसे बच्चे होंगे जिनको कोई ज्ञान देगा जाके कि पढ़ाई में पीछे रह जाओगे, हॉबीज के चक्कर में मत पड़ो, ये प्रोजेक्ट के चक्कर में मत पड़ो। उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास? सर ये बातें तो हमें भी बोली गई थी। यस सर, ये बातें हमें भी बोली गई थी, बट एज वी आर हेयर सो हम तो उन्हें बस ये बोलना चाहते हैं कि स्टे कंसिस्टेंट सर। हॉबीज कैन चेंज इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, एज वी डिड यू कैन डू इट टू। सर हॉबीज़ क्या होती हैं? जो काम हम करना पसंद करते हैं, तो जो काम पसंद है उसे बिजनेस में लाएंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। चलो एक सवाल और पूछता हूँ कि अभी आपने सुना, मैंने अनाउंस किया कि आप लोगों को 1-1 हज़ार रुपये का सीड मनी कमिटमेंट था। यस सर। अभी मैंने बोला 2-2 हज़ार रुपये का सीड मनी कमिटमेंट होगा। तो आपको लगता है कि अगर आपको 2-2 हज़ार रुपये का सीड मनी कमिटमेंट मिलता तो आप ये वाला काम चुनते या कोई और? सर यही काम चुनते हैं। करना ही था। एक आखिरी सवाल है, मैं आई थिंक बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, कभी जिंदगी में सोचा था कि 1000 रुपए इतनी बड़ी चीज है? नो सर। आई थिंक वो सर बहुत 1000 रुपये नहीं 2000 भी मिले पेरेंट्स से, पर कभी सोचा नहीं था कि हम उन्हें इस तरह से यूज कर सकते हैं। यही हम लोग बात कर रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ मनी डजंट मैटर, यस सर। यू नो व्हाट मैटर्स इज दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट अपॉर्चुनिटी कि यार ये मेरे को इस काम के लिए है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई मीन दैट्स व्हाट मैटर, वॉल्यूम ऑफ मनी डजंट मैटर। दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग बिफोर वी मेट यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much. First of all, many congratulations to both of you. I'm so happy that you have done such a wonderful project and you have been successful in that. And all the best to you in your future. बेटा मुझे ये बताओ, आई थिंक आपने जब ये कार्य स्टार्ट कर दिया, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, कहीं आपको उसमें प्रॉब्लम्स आए होंगे, कोई अड़चन आए होंगे, कभी आपने ये भी सोचा कि मुझसे मुश्किल होगा, आगे बढ़ेंगे या नहीं? ऐसे जो सिचुएशन में आपने उस चैलेंजेस को कैसे फेस किया? आपको किसकी गाइडेंस मिली या खुद आपने थिंक किया? क्या सिचुएशन रही? Sir, because it was a COVID, because of COVID pandemic, we really faced a lot of situation. Like I was a COVID patient. Also, we were not getting orders. Like she were not getting orders. I was not getting orders because of COVID. So at that time, we thought that maybe it won't work. But sir, all thanks to our business coach, sir, she was the person who told us that it will work. I have confidence in you. Our teachers, our principal ma'am, they all were like, we have confidence in you, it will work. So it did work. I'm sure, best of luck. अगर आप 1000 प्रिंसिपल्स, 1000 टीचर्स और इतने सारे एजुकेशन लीडर्स के सामने बैठ के बात कर सकते हो, तो कल जब अपनी कंपनी के बोर्ड में जाके बड़े बड़े क्लाइंट्स के सामने बैठ के बात करोगे, विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू। Thank you, sir.